Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about the adrenals, gonads, and the remaining of the endocrine glands. And finally, we will also talk about a little bit about the feedback mechanism with respect to chemical coordination. Adrenal glands. The adrenal glands they are found above the kidneys. Each gland has an outer cortex which produces steroid hormones and an inner medulla which produces catecholamines. The adrenal cortex itself is divided into three zones. The outermost zone is called the zona glomerulosa. It produces the type of hormones which we call as mineralocorticoids. The middle one is called zona fasciculata. It produces glucocorticoids. And the inner zone, which is called as the zona reticularis. This part produces androgens. So in this diagram, you can see the kidneys. So kidneys का जो interior और dorsal side है उसके साथ adrenal glands attach होती हैं एक लेफ्ट साइड पे और दूसरा लेफ्ट किडनी के साथ अगर एक इंडिविजुअल एड्रिनल ग्लैंड को हम उठाकर ट्रांसफर सेक्शन इसका ले लें so we will see that it consists of an outer region this one and an inner region. The outer region is the adrenal cortex. The inner region is called as the adrenal medulla. इस adrenal cortex को भी अगर हम expand करके देख लें so the most outer layer is called as zona glomerulosa. This is the part which is responsible for the production of mineralocorticoids. The middle layer is called as zona fasciculata, and this is responsible to produce glucocorticoids. Uh, and the innermost layer of the adrenal cortex is called as zona reticularis. It is responsible for the secretion of androgens. All these three types of hormones are collectively belonging to the steroid category of hormones. The inner layer, which is called as medulla, is this one, and medulla is responsible to produce the group of hormones called catecholamines, including epinephrine and norepinephrine. The adrenal cortex is working according to the HPA axis. HPA axis के जो parts है वो कौन कौन से है hypothalamus है P का मतलब है pituitary gland anterior pituitary especially और A means adrenal तो जो adrenal cortex है it is stimulated by adrenocorticotropic hormone but this adrenocorticotropic hormone which comes from the pituitary will be produced only when a hormone coming from the hypothalamus stimulated and that hormone is called as corticotropin releasing hormone और इसके अलावा जो है ये जो एड्रिनल कार्टेक्स के हार्मोन्स हैं वो जब एक दफ़ा सिक्रीट होना शुरू हो जाए और ये किस वक्त सिक्रीट होती है जब पिट्यूटरी से एसीटीएच आए और पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस से सीआरएच यहाँ पर इसको स्टिमुलेट करें तो इस पूरे पाथवे का काम है इसका प्रोडक्शन है कार्टिक्स के हार्मोन्स कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करना और जब ये एक दफ़ा सिक्रीट होना शुरू हो जाए तो ये रेड एरोज मींस द नेगेटिव फीडबैक जब एक दफ़ा कार्टिसोल एक खास मकदार में खून में बनना शुरू होकर जमा होना शुरू हो जाए एंड व्हेन दैट हार्मोन्स reaches to the pituitary or to the hypothalamus that works like a feedback and what type of feedback negative feedback because the end product reaching upon this site from which these hormones are secreted will now reduce its speed या will retard and even stop its secretion कि कार्टिसोल जब खास मकदार में यहाँ पर खून में शामिल हो जाए फिर ये फीडबैक करके एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट करती है और इसी तरह हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करती है कि मजीद हार्मोन सिक्रीट ना करें ताकि वो हार्मोन ज़ाया ना हो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो कि आगे टॉपिक में हमने तफसील से एक्सप्लेन भी करना है सॉरी एड्रिनल ग्लैंड का जो मिडुला है जो इंटरनल रीजन है जिसको मिडुला कहते हैं उससे जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो ये है एड्रिनलिन विच इज आल्सो कॉल्ड एपिनेफ्रिन और दूसरा है नॉर एड्रिनलिन जिसको दूसरा नाम है नॉर एपिनेफ्रिन दे हैव साइनर्जिस्टिक इफेक्ट्स इन द इमरजेंसी सिचुएशन साइनर्जिस्टिक का मतलब है कि इन दोनों के असरात जो है उसका इफेक्ट एक जैसा होता है अगरचे ये काम दो मुख्तलिफ रीजन्स में बॉडी के करते हैं दोनों हार्मोन्स लेकिन इन दोनों का असर बॉडी पर एक जैसा होता है मसलन क्या होता है कि एपिनेफ्रिन स्टिमुलेट द मेटाबॉलिज्म डायलेट्स द ब्रोंक्यूल्स इंक्रीजेस ब्लड सप्लाई टू हार्ट एंड मसल्स
ये जो हार्ट के मसल्स हैं या बॉडी की जो दूसरी मसल है उनमें वैसो डायलेशन काज करती है, जिसकी वजह से खून काफी मकदार में उधर डायरेक्ट हो जाता है। और जबकि नार इपिनेफ्रीन काजेज पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रक्शन, स्किन रीजन में या डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ब्लड वेसल है उनको वेसो कंस्ट्रक्ट करती है, उनको तंग करती है ताकि उसको खून की सप्लाई कम से कम पहुंचे। तो इन दोनों का कलेक्टिव इफेक्ट जो है वो क्या पड़ता है बॉडी पर? ब्लड प्रेशर का हाई होना। इसलिए इन दोनों के असरात को कहते हैं साइनर्जिस्टिक इफेक्ट्स। तो इन दोनों हार्मोन का काम है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, यानी जहां पर या तो इंसान मुकाबला करे या इंसान भाग जाए, तो ये होती है इमरजेंसी सिचुएशन। इसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करना एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स का काम है। और ये चूंकि यही हार्मोन्स असल में वर्क करते हैं एज न्यूरो ट्रांसमीटर, किस पाथवे में? नर्वस सिस्टम के सिंपैथेटिक नर्वस पाथवे में। तो सिंपैथेटिक नर्वस पाथवे का भी हमने कहा था कि उसका काम है बॉडी को प्रिपेयर करना इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, और इस इनका भी यही रोल है। तो दोनों का आपस में अगर आप कोइंसाइड करना चाहे तो क्या मतलब है कि वो एक नर्वस पाथवे है, लेकिन उनके न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स ये सब्सटेंसेस है, दोनों का काम एक जैसा है। Adrenaline is used to treat shock. It dilates the arteries, elevates systolic blood pressure, increases the cardiac output and increases urinary output. तो शॉक की कंडीशन में अगर किसी से किसी एक्सीडेंट वगैरह में बहुत ज़्यादा खून की ब्लीडिंग हो, तो नतीजतन ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ऐसी सूरत में एड्रेनलिन अगर उसको इंजेक्शन की सूरत में लगाया जाए तो इस तरह उसका जो ब्लड प्रेशर है वो बहाल हो जाता है। ये तस्वीर में दिखाया गया है कि एक ब्लीडिंग के नतीजे में अगर कोई शाक बंदे को मिलता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाए, तो एड्रेनलिन भी एक इस सूरत में ट्रीटमेंट होती है। एड्रेनल मेडुला से जो है एपिनेफ्रीन यानी जो एड्रेनलिन खारिज होता है उसके ये रोल दोबारा रिपीट हो गए। इट एलिवेट्स सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इंक्रीजेस हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, स्पीड्स अप रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर। ये भी इमरजेंसी सिचुएशन में ज़रूरी होता है। गिविंग ए स्पर्ट ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से बॉडी में एनर्जी आ जाती है। डायलेट्स द ब्रोंकियल ट्यूब्स, सांस लेने में आसानी हो जाती है। एंड रिलैक्सेस एयरवेज एंड डायलेट्स द प्यूपिल, और आंख की जो प्यूपिल है उसको भी डायलेट करती है ताकि ज़्यादा रोशनी अंदर आ सके, टू सी मोर क्लियरली। इट इज़ ऑफन यूज टू काउंटरैक्ट एन एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी के नतीजे में जो रिएक्शन है उसको भी ये ख़त्म कर देती है। सो ये इस तरह एडमिनिस्टर हो सकता है इंजेक्शन की सूरत में। नार एपिनेफ्रीन जो है उसका रोल, लाइक एपिनेफ्रीन इज रिलीज व्हेन द बॉडी इज अंडर स्ट्रेस। इट क्रिएट्स द अंडरलाइंग इन्फ्लुएंस इन द फाइट और फ्लाइट रिस्पांस। लेकिन मैंने कहा था कि इसका रोल जो है अगरचे है तो साइनर्जिस्टिक, लेकिन इसका असर ज़्यादातर पेरिफेरल सिस्टम यानी आपके स्किन और डाइजेस्टिव सिस्टम पर होता है, जहाँ पर ये वैसो कंस्ट्रक्शन करके ब्लड फ्लो को डाइवर्ट करती है टुवर्ड्स द इंटरनल ऑर्गन्स, दैट इज द हार्ट एंड द अदर मसल्स। बट स्किन तक और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको खून इस वक्त यानी जो फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन है वो रोक देती है। तो फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन को थोड़ा सा तस्वीरों की शक्ल में दिखाया गया है। ये पहली वाली तस्वीर जो है फ्लाइट वाली है, इंसान कोई खौफ की वजह से भागने लग जाए या मुकाबला हो, लड़ाई हो, तो दैट्स द फाइट सिचुएशन। दोनों में ये है, आपने देखा होगा स्किन पेल पड़ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, यानी हालो फीलिंग इन द बॉडी फील होती है, लेकिन मसल बड़े स्ट्रांग होते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और आउटपुट भी ज़्यादा हो जाता है। Over secretion of both the hormones, adrenaline or noradrenaline, that leads to hypertension, high blood pressure का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, and aggressive behavior, और इंसान में जो है वो गुस्सा वाली कैफियत आ जाती है। Under secretion causes failure to combat emergency situation। अब हम आते हैं एड्रेनल कार्टेक्स की तरफ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर जो स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशन जिसमें बॉडी को फेस करना पड़ता है लो टेम्परेचर को एनवायरनमेंट का, या जो है बहुत हाई टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट, या इसके अलावा कोई इन्फेक्शन हो, तो दीज आर स्ट्रेस कंडीशंस। तो इस सूरत में एड्रेनल ग्लैंड का जो कार्टेक्स है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन एड्रेनल कार्टेक्स जो आपने देखा उसके 3 हिस्से होते हैं। जो सबसे आउटर मोस्ट हिस्सा है जिसको जोना ग्लोमेरुलेटा कहते हैं, उससे सिक्रीट होता है मिनरलोकार्टिकाइड्स, और मिनरलोकार्टिकाइड्स में से जो सबसे कॉमन है वो है एल्डोस्टेरोन।
और आपको एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में याद होगा हमने बताया था कि इट इज एसेंशियल इन regulating electrolyte and water balance by promoting sodium and chloride retention and potassium excretion in the descending loop of Henle inside kidney. इसी तरह जो है जोना फेसिकुलेटा जो कि मिडिल लेयर है कार्टेक्स का, उससे सिक्रीट होती है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स व्हिच आर कॉल्ड ग्लूकोकार्टिकाइड्स, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए अहम है, स्पेशली ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। मसलन उसकी एक कॉमन एग्जांपल है कार्टिसोल या कार्टिसोन। इट रेगुलेट्स द ब्लड ग्लूकोज लेवल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, हैज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, इन्फ्लेमेशन को कम करती है, एंड हेल्प्स द बॉडी कोप ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस। हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर स्ट्रेस में ये बॉडी को प्रिपेयर करती है इस तरह की कंडीशन के लिए। यहाँ पर जिक्र आया है ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करना, तो ये आप देख लें कि यही बात हमने इंसुलिन और ग्लूकागॉन के हवाले से की थी और यहाँ पे भी हो रही है। तो इन दोनों को हम कैसे मतलब कि इनमें हम आहंग पैदा कर सकते हैं, वो ये कि जो ग्लूकागॉन का रोल है कि जब जिस्म के अंदर ग्लूकोज की लेवल एक ख़ास हद से कम हो जाए तो फिर ग्लूकोज तो खून में सिक्रीट करना भी ज़रूरी होता है ताकि एक ख़ास लेवल पे रहे। तो ग्लूकागॉन का काम जो है वो होता है ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ना ताकि उससे ग्लूकोज बने और वो रिलीज होकर खून में आ जाए। लेकिन यहाँ पर जो है रोल क्या है कि ये ग्लूकोज बनाता है बाय ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ये कंट्रोल करता है ग्लूकोज की फॉर्मेशन बाय ग्लूकोन्यूजेनेसिस, मींस के नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर मॉलिक्यूल जैसे लिपिड से या प्रोटीन को तोड़कर उनसे ग्लूकोज बनाना ताकि खून में वो शामिल होकर इस वक्त एनर्जी फ्राहम कर सके। तो इस अमल को कहते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस। सो ये जो कार्टिसोन का रोल है वो ज्यादातर ग्लूकोज की मकदार को बढ़ाना है बाय ग्लूकोन्यूजेनेसिस। दूसरी बात यह है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जरा फास्टर होता है, क्योंकि इमरजेंसी और स्ट्रेस सिचुएशन के लिए बॉडी को प्रिपेयर करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ग्लूकोगान करता है उस तरह ना हो, बल्कि तेजी से ग्लूकोज बनाए। तो ये अमल जो है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कार्टिसोन। अगर इन दोनों हार्मोन्स की, मिनरल कार्टिकाइड्स की या ग्लूकोकार्टिकाइड्स की हाइपो सिक्रीशन यानी अंडर सिक्रीशन हो तो इससे एक बीमारी बनती है बॉडी में जिसको कहते हैं एडिसन्स डिजीज। तो एडिसन्स डिजीज जो है उसके कॉमन सिम्टम्स क्या है? जनरल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, वीकनेस ऑफ मसल एक्शन, लॉस ऑफ साल्ट्स एंड बॉडी कोलैप्स ड्यूरिंग स्ट्रेस। इवन इन द एक्सट्रीम कंडीशन इट मे आल्सो लीड टू डेथ। तो ये सीरियस बीमारी होती है अगर इन दोनों हार्मोन्स की सिक्रीशन कम हो। हाइपर सिक्रीशन, अगर ज़रूरत से ज़्यादा ये सिक्रीट होने लगे तो इससे भी जिस्म को नुकसान पहुंचता है, और इसमें एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं कुशिंग्स डिजीज़। ये एडिसन भी एक साइंटिस्ट का नाम है और कुशिंग्स भी एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने सबसे पहले इस बीमारी के बारे में बताया, तो इसलिए इनके नाम ये है। इसके सिम्टम्स क्या है? एक्सेसिव प्रोटीन ब्रेकडाउन, ग्लूकोन्यूजेनेसिस के लिए प्रोटीन इतना टूटता है कि रिजल्टिंग इन मस्कुलर एंड बोन वीकनेस। एड्रिनल कार्टेक्स से जो तीसरा हार्मोन सिक्रीट होता है दैट इज कॉल्ड दे आर कॉल्ड एज एंड्रोजेंस। दे आर सिक्रेटेड बाय द जोना रेटिकुलरिस, यानी सबसे अंदर इनर मोस्ट लेयर है जो एडजेसेंट है टुवर्ड्स द मिडुला। इसमें से सेवरल हार्मोन्स इंक्लूडिंग टेस्टोस्टेरोन। अब ये बात याद रखें कि टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन बेसिकली तो टेस्टिस से होती है, लेकिन यहाँ से भी कुछ न कुछ मकदार में ये सिक्रीट होता रहता है। और चूंकि एड्रिनल ग्लैंड तो मेल और फीमेल दोनों में है, टेस्टिस तो सिर्फ मेल में है, लेकिन जो ये एड्रिनल ग्लैंड हो तो मेल फीमेल दोनों में है, इसलिए टेस्टोस्टेरोन के एक मिनिमम लेवल बोथ फीमेल में और मेल में सिक्रीट होती रहती है। एंड दे प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन द मेल। लेकिन फीमेल में भी अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट होने लगे तो कहीं फेशियल हेयर अपीयर होना या खातून में मर्द जैसे खसूसियात का अपीयर होना ये हो सकता है इसकी वजह से। और दूसरी बात यह है कि कुछ जैसे खसूसियात है या जैसे हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस है, जैसे बर्दाश्त या एंड्योरेंस हो गई और मसल की स्ट्रेंथ हो गई, ये भी एक रोल होता है टेस्टोस्टेरोन का। तो ख़वातीन में भी कुछ न कुछ हद में ये टेस्टोस्टेरोन का होना ज़रूरी होता है, एंड दैट इज सिक्रेटेड बाय द जोना रेटिकुलरिस, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स। मेल में इसका रोल तो ये है कि अपीयरेंस ऑफ द हेयर on the face and under the armpits, etc. So the next topic is the secretions from the gonads.
गोनेड्स जो है उनका तो बुनियादी काम आपको याद होगा कि स्पर्म एंड एग्स प्रोडक्शन है, लेकिन साथ ही साथ इनके कुछ टिश्यूज और इनके कुछ सेल जो है दे आल्सो सिक्रीट हार्मोन्स एंड रिलीज देम इनटू ब्लड, जहाँ पर ये बॉडी में जाकर मुख्तलिफ फंक्शंस को कंट्रोल करती है। तो सबसे पहले हम गोनेड्स में ओवरीज यानी फीमेल गोनेड्स की तरफ आते हैं। बुनियादी काम इनका एक फॉर्मेशन है, लेकिन साथ साथ the ovaries produce several hormones like estrogens and progesterone. Estrogen is produced by Graafian follicles. ये ओवरी के अंदर खास किस्म के मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ग्रेजुअली हर महीने में आफ्टर प्यूबर्टी मैच्योर होते रहते हैं और एक महीने में उनसे एक रिलीज होती है। सो इन स्ट्रक्चर्स में जो जर्म लाइन सेल्स है जिसको ओग्यूनिया कहते हैं उनसे तो एक बनेगा, लेकिन बाकी ग्रेफियन फॉलिकल के जो सेल्स है कई किस्म के, उनमें से एक खास किस्म के सेल का नाम होता है ग्रेनुलोसा सेल्स। तो ग्रेनुलोसा सेल जो है अंडर द एक्शन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन व्हिच कम्स फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, दे सीक्रेट एस्ट्रोजेंस. It is produced at puberty and responsible for development of secondary sexual characteristics of the female. Female के जो secondary sexual characteristic है जैसे breast development वगैरह, they play a role in sex drive of the female and healing of the uterus after menstruation. Menstruation का अमल जो हर महीने repeat होता रहता है in the grown up females, in the adult females. तो ये जो मेंस्ट्रुएशन की जो ब्लड वगैरह ड्रिब्लीज वगैरह निकलती हैं, उसके बाद यूट्रस की दीवार में जो टूट फूट हो चुकी थी उसको दोबारा रिपेयर करना, हील करना, और अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल में जिसमें इम्प्लांटेशन ऑफ द फीटस के लिए इसको प्रिपेयर करना तो स्टार्ट लेती है। इसका ये जो हीलिंग प्रोसेस है और फिर इसका को जो है ना इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करने का जो स्टार्टिंग स्टेज है इट इज कंट्रोल्ड बाय एस्ट्रोजन। फाइनल स्टेज जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोजेस्टेरोन, लेकिन जो इनिशियल स्टेज है यूट्रस की डेवलपमेंट की दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन की डिफिशिएंसी होगी इन यंग फीमेल इट रिजल्ट्स इन द फेल्योर टू मैच्योर सेक्सुअली। इस तरह की खवातीन फिर सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो पाती। डिफिशिएंसी इन एडल्ट्स लीड्स टू स्टेरिलिटी, और अगर हायर एज एडल्ट एज में इसकी डिफिशिएंसी होगी तो इससे बांझपन यानी बच्चे पैदा करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। ओवर सिक्रीशन लीड्स टू फाइब्राइड्स इन द यूटरस। अगर ओवर सिक्रीशन होगी तो यूटरस में इरेगुलर मासेस, इरेगुलर टिश्यूज बनते हैं और ग्रोथ बनते हैं जिसको कहते हैं फाइब्राइड्स, और या ओवरी में इससे एक कंडीशन बनता है जिसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में क्या होता है कि जो मेंसेस है या जो मेंस्ट्रुएशन के साइकिल्स है वो इरेगुलर हो जाते हैं, यानी मतलब कि हर 28 दिन बाद नहीं होता, कभी प्रोलॉन्ग हो जाता है, कभी डिले हो जाता है, या अगर मेंसेस आते हैं तो उसका ड्यूरेशन एबनॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह की खवातीन जो है दे आर आल्सो फेसिंग सम प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू देयर फर्टिलिटी। तो ये अगर ओवर सिक्रीट हो तो भी नुकसान है, अंडर सिक्रीट हो तो भी नुकसान है, और नॉर्मल फंक्शन इसका ये है। यहाँ पर फिर वो डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखें कि इधर भी वही एक्सिस कारफरमा है, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर ये गोनेड्स। तो इस प्रोसेस में क्या है कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला हार्मोन जो है उसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका टारगेट साइट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इंटीरियर ग्लैंड स्टिमुलेट होकर इस रिलीजिंग फैक्टर के जरिए असर सिक्रीट करती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के अर्ली स्टेजेस में बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से ये ओवरी में जाकर ग्रेफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है जो कि एस्ट्रोजन खारिज करते हैं, जो कि फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को भी और ओजेनेसिस वगैरह के अमल को भी आगे प्रोमोट करती है। जबकि दूसरी तरफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो ओव्यूलेशन के अमल के लिए, यानी जब एक दफ़ा एग मैच्योर हो जाए तो उसके रिलीज के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, और एक दफ़ा उसके एग के रिलीज होने के बाद ग्रेफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग टिश्यू है उसको कार्पस ल्यूटियम में तब्दील होने के लिए भी ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। इसका नाम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस वजह से है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द रेमनेंट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल इनटू कार्पस ल्यूटियम, इसलिए इसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये भी ओवरी के लेटर स्टेज में उस पर असरअंदाज होती है। ओवरी पे ओवरी के कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन होने देती है ताकि वो दूसरा हार्मोन खारिज करने लगे जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन का फिर यूट्रस पर
एक्शन ये होता है कि ये जो वेस्कुलराइजेशन शुरू हुई थी एस्ट्रोजन के एक्शन के नतीजे में उसको मेंटेन रखती है, इसलिए प्रेगनेंसी को फिर मेंटेन रखती है। अगर प्रेगनेंसी हुई है तो, नहीं हुई तो ये प्रोजेस्टेरोन को 28वें दिन तक तो रहता है। बाद में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन स्टॉप होने के नतीजे में ये प्रोजेस्टेरोन भी बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटम डिजेनरेट या ख़त्म हो जाता है। और फिर जो है अगला मेंसेस होता है, यानी मतलब कि वो जो यूट्रस की दीवार है टूट फूट कर फिर निकल जाती है जिस्म से। सो प्रोजेस्टेरोन का रोल है यूट्रस को वेस्कुलराइज्ड और नरम कंडीशन में बरकरार रखना। अच्छा, अगर ओवरी को हम फोकस करें तो ये जो तीर दिखाया गया है, ये जो बारीक तीर, इसका मतलब है कि ये यहाँ पर भी नेगेटिव फीडबैक है कि जब एस्ट्रोजन की सिक्रीशन एक खास लेवल से बढ़ना शुरू हो जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी इनहिबिट करती है और गोनेडोट्रोपिन यानी जो हाइपोथैलेमस है उसको भी इनहिबिट करती है, ताकि ये हार्मोन मजीद न निकले, क्योंकि फिर जो एस्ट्रोजन है वो काफ़ी मकदार में जिस्म में आ चुका होता है। दूसरा हार्मोन जो है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, उस पर का ओवरी पर रोल तो मैंने बता दिया कि कार्पस ल्यूटम बनाकर फिर वहाँ से प्रोजेस्टेरोन के सिक्रीशन का सबब बनती है। मेल में ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका रोल एज ICSH है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि टेस्टिस में ये टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल को, जो इसकी जर्म लाइन सेल है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होते हैं जिनसे स्पर्म बनते हैं, वो सेल तो अलग है। इसके अलावा जो रिमेनिंग सेल है जिनको इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, उनको स्टिमुलेट करती है ताकि वो क्या बनाए, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का फिर आगे अपना एक फंक्शन है। ये भी इस तरह नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए इसकी सिंथेसिस इनहिबिट होगी। जब इसकी मकदार ज़्यादा हो जाती है तो पिट्यूटरी को भी इनहिबिट करती है और हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट करती है, ताकि ये हार्मोन मजीद रिलीज ना हो, ताकि इनका फर्दर सिक्रीशन ना होने पाए, कि वैसे इस पर एनर्जी ज़ाया ना हो, ताकि बॉडी होम्योस्टेसिस में रहे, ज़रूरत के मुताबिक ये हार्मोन बॉडी के ब्लड में या टिश्यूज़ में रहे। ओवरी से निकलने वाला दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द कार्पस ल्यूटियम इन रिस्पांस टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आफ्टर ओव्यूलेशन, बट आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। के नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो ये कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, लेकिन कार्पस ल्यूटियम एक प्रेगनेंसी अगर ना हो तो फिर टूट जाता है, फिर ये प्रोजेस्टेरोन मजीद नहीं बनेगा और अगला मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा। लेकिन अगर बाई चांस वो प्रेगनेंसी हो गई तो फिर ये हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन, ये प्लेसेंटा से बनेगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एंड इट इनहिबिट्स FSH सिक्रीशन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को ये इनहिबिट करती है, ताकि एंड प्रिवेंट मोर फॉलिकल्स फ्रॉम राइपनिंग, ताकि मजीद फॉलिकल राइपन ना हो, क्योंकि अब एग रिलीज की क्या जरूरत है, अब तो 9 महीने तक फीटस ने यूट्रस के अंदर ग्रो करना है। इट causes vascularization, thickening of uterus wall and maintains the state of pregnancy. It suppresses ovulation, और जो ओवरी है उससे मजीद एक रिलीज को भी ये इनहिबिट करती है इस दौरान कि जब तक प्रेगनेंसी चल रही हो। ये ओवरी के अंदर आप देखें कि राइट फ्रॉम द बर्थ जो ओवरी की सेल्स है उसमें ये स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं विच आर कॉल्ड प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। लेकिन जब एक दफ़ा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्यूबर्टी के टाइम उसकी सिक्रीशन बढ़ने लगे फीमेल्स में, तो फिर ये ग्रेफियन फॉलिकल जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाते हैं, मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स, क्योंकि इसमें जो रिप्रोडक्टिव सेल ओगुनिया की सूरत में है उसमें अभी मियासिस नहीं हुआ। जब इसमें फिर उसी ओगुनिया सेल में जब मियासिस होकर फर्स्ट मियाटिक डिवीजन के नतीजे में उससे एक पोलर बॉडी और एक प्राइमरी सॉरी सेकेंडरी ओसाइट बन जाए, प्राइमरी ओसाइट, प्राइमरी ओसाइट और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाए, तो इस सूरत में फिर फॉलिकल का नाम बन जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। और असल में ये काफ़ी मेच्योर होने के नतीजे में इसके सेल्स के दरमियान में केविटी एंट्रियम एंट्रम भी अपीयर हो जाता है, और एक इसमें ये रिप्रोडक्टिव सेल यानी प्राइमरी ओसाइट होता है, और बाकी जो सेल्स है दे आर कॉल्ड ग्रेनुलोसा सेल्स, एंड दीज सेल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर होकर जब रप्चर हो जाता है अंडर द एक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो इधर से एक रिलीज होती है, इस अमल को कहते हैं ओव्यूलेशन। यहाँ पर एक बिल्कुल प्योर एक की सूरत में नहीं होती, सेकेंडरी ओसाइट की शक्ल में होती है, जिसमें अभी सेकंड मियाटिक डिवीजन अभी नहीं हुआ। तो सेकंड मियाटिक डिवीजन उस वक्त होगी जब स्पर्म इसको स्टिमुलेट करे, तो सेकंड पोलर बॉडी अलग हो जाती है और फिर एग रहकर फर्टिलाइजेशन में स्पर्म के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनाती है।
लेकिन फॉलिकल के रप्चर के नतीजे में जो रिमेनिंग टिश्यू है जो अभी तक सेल्स पर मुश्तमिल ही, इनके सेलुलर मेम्ब्रेन जो है वो डिजॉल्व हो जाती है एंड दे टर्न इनटू ए नॉन सेलुलर येलो कलरिंग स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड कार्पस ल्यूटियम एंड दिस इज डेवलप्ड अंडर द एक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। और जब ये बनने लगे और बन जाए तो इट सीक्रेट अनदर हार्मोन व्हिच इज कॉल्ड एज दी प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन फिर यूटेरस पर जाकर यूटेरस की दीवार को वेस्कुलराइज और थिक कंडीशन में रखती है कि अगर प्रेगनेंसी हो गई है फर्टिलाइजेशन के बाद तो उसको उसी थिक हालत में वेस्कुलराइज कंडीशन में मेंटेन रखे। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, ये एग ज़ाया हो गया, तो फिर ये कार्पस ल्यूटियम 28वें दिन तक आहिस्ता आहिस्ता जाकर फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटा होकर ख़त्म हो जाता है और फिर वही सिलसिला शुरू होगा, कोई और फॉलिकल मैच्योर होगा और ये सिलसिला हर महीने जारी रहता है। इसका पूरा तफसील हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बताएंगे। अंडर सेक्रीशन ऑफ द प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी एंड अर्ली मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि वो जो दीवार है यूट्रस का जिसको मेंटेन रहना है प्रेगनेंसी को कायम रखने के लिए, वो या तो टूट जाता है तो प्रेगनेंसी होती ही नहीं है, हो गई भी तो या अर्ली मेंस्ट्रुएशन होगी, मेंसेस जल्दी शुरू होंगे। अंडर सिक्रीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये अंडर सिक्रीशन होगी तो चूंकि यूट्रस दीवार अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकेगी, इसलिए मिसकैरेज भी इसके जरिए हो सकती है। अच्छा, अब हम आते हैं मेल गोनेट्स की तरफ जिसका नाम है टेस्टिस। तो टेस्टिस का बुनियादी काम स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म बनाना है, लेकिन साथ साथ इसके जो सेल्स है, ये आपको टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन में एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाया गया है जिसके सेल्स दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल और दूसरा न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं, विच आर कॉल्ड सिर्टोलाई सेल्स। लेकिन इसकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा जो बाकी सेल्स है दे आर कॉल्ड लाइडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। तो यहाँ पर भी वही एक्सेस काम करता है जो मैं अभी बता रहा था, HPG। तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर पिट्यूटरी से ये दो हार्मोन, मसलन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका टारगेट साइट होता है सिर्टुलाई सेल्स, ये सिर्टुलाई सेल्स। और सिर्टुलाई सेल्स जो है दे हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरी तरफ जो है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसका यहाँ पर नाम ICSH यानी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी है, ये लाइडेक सेल्स यानी जो इंटरस्टिशियल सेल्स है उसको स्टिमुलेट करती है। और जब वो स्टिमुलेट होती है तो वो गेमेट्स नहीं बनाते बल्कि दे रिलीज टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन आपका जो है मेल सेक्स हार्मोन यानी कॉमन एंड्रोजन है। The interstitial cells in the testes produce the male sex hormone called testosterone under the influence of ICSH, which is also called luteinizing hormone या interstitial cell stimulating hormone. During puberty, it is essential for normal growth and development of the male sex organs and appearance of the secondary sexual characteristics of the male. Male के जो secondary sexual characteristic है जिसमें appearance of hair under armpits, on the face, coarsening of the sound, etc., and the appearance of the Adam's apple in the throat region. ये सारे secondary sexual characteristics and sex drive. Testosterone is also responsible for the endurance यानी बर्दाश्त, एजिलिटी, फुर्ती और तेजी, एंड स्ट्रेंथ और क़ुव्वत। और यही वजह है कि चूंकि ये टेस्टोस्टेरोन मेल में ज़्यादा है और इसी में बहुत बड़ी मकदार में है, तो आपने देखा होगा मेल फीमेल के मुकाबले में मेल जो है वो स्ट्रांगर जेंडर है, इसमें बर्दाश्त भी ज़्यादा होती है, इसमें क़ुव्वत भी ज़्यादा होती है निस्बत फीमेल के। किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। अंडर सेक्रेशन causes development of feminine characteristics and male sterility. किसी में अगर टेस्टोस्टेरोन की सिक्रेशन कम होगी तो उनकी खुसूसियात खवातीन जैसी होंगी। और दूसरी बात यह है कि इसकी वजह से मेल स्टेरिलिटी भी हो सकती है कि मेल फिर बच्चे पैदा करने की सलाहियत उसमें कम हो जाती है। ये तो हो गई आपकी वो बड़े बड़े ग्लैंड्स जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम की इंटीग्रल कंपोनेंट्स कहते हैं, लेकिन साथ साथ बॉडी की हर जगह आपको कोई एंडोक्राइन टिश्यू नजर आएगी। मसलन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल म्यूकोसा जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका, मसलन स्टमक, द म्यूकोसा ऑफ द पाइलोरिक एरिया ऑफ द स्टमक secretes the hormone gastrin which stimulates the production of gastric acids for digestion, गैस्ट्रिक एसिड और इसके अलावा दूसरे गैस्ट्रिक जूसेस जैसे पेप्सिन वगैरह।
तो यह देख रहे हैं ये वाला एंड जो स्टमक है इसको पायलोरिक एंड कहते हैं, इस वाले को कार्डिक एंड कहते हैं। पायलोरिक एंड में ये ग्लैंड्स ज़्यादा मकदार में होती हैं और ये जी सेल्स जो होते हैं दे प्रोड्यूस गैस्ट्रिन, जो कि ब्लड सर्कुलेटर में सर्कुलेशन में शामिल होकर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है ताकि वो गैस्ट्रिक जूसेस खारिज करे फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एक्सेट्रा। इसी तरह आपके intestine में the mucosa of duodenum and jejunum secretes the hormone secretin cholecystokinin which stimulates the pancreatic juice, bile and intestinal secretion। ये आप देखिए इंटेस्टाइन का वो हिस्सा जिसको हम क्या कहते हैं, ये वाला ड्यूडेनम और आगे जीजुनम, इस हिस्से में आपकी इस दीवार में ग्लैंड्स होती है विच प्रोड्यूस कोलेसिस्टोकाइनिन्स जो कि बाइल के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती है, और सिक्रेटिन जो कि पैंक्रियाटिक सिक्रीशन को और इंटेस्टाइन की दूसरी सिक्रीशन जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सिक्रेट होती है उसको स्टिमुलेट करती है। तो यहाँ पर भी इनका रोल एज ए हार्मोन है क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर टारगेट ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करती है। इसी तरह आप प्लेसेंटा को देख रहे हैं कि प्लेसेंटा जो है जो कि कनेक्शन है बिटवीन द फीटस एंड द यूट्रस ऑफ द मदर। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द प्लेसेंटा सर्व एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, और वहाँ पर ये दो किस्म के हार्मोन सिक्रीट करती है। एक तो इस इधर से कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन भी सिक्रीट होता है जो कि ओवरी में मौजूद कार्पस ल्यूटेम को मेंटेन रखता है ताकि वहाँ से भी प्रोजेस्टेरॉन खारिज हो, और साथ साथ ये प्लेसेंटा को स्टिमुलेट करता है ताकि वो बनाए प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन का काम भी क्या है, इस यूट्रस की दीवार की मोटी हालत को बरकरार रखना जब तक गेस्टेशन या प्यूबर्टी बरकरार रहती है। Hormones everywhere. मसलन kidneys produce several hormones. For example, renin, EPO यानी erythropoietin, calcitriol, etc. ये आपने नाम सुने होंगे. That regulate blood pressure, which is essential for kidney function. इसी तरह brain produce endorphins that block pain sensation. The prostaglandins are group of lipids made at sites of tissue damage or infection that are involved in dealing with the injury and illness। तो ये भी हार्मोन्स है उस टिश्यू में बनते हैं जिसको इंजरी का सामना हो, जहाँ इन्फेक्शन हो। सो ये हार्मोन्स आप देख लें कि बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में बनते हैं, सिर्फ इन्हीं इंडोक्राइन ग्लैंड्स में नहीं है जिनका काम सिर्फ इंडोक्राइन है, बल्कि अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आल्सो प्रोड्यूस सर्टेन हार्मोन्स which comes into the blood and then reaches towards the target site to control certain functions। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में और इसी टॉपिक में हमारा है फीडबैक मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है? A mechanism by which the products of a process can act as regulators of that process। यानी किसी ऐसा मैकेनिज्म जिसमें एक प्रोसेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं कंट्रोलर्स यानी रेगुलेटर्स। दैट इज a controlling system is itself controlled by the products of the reaction it is controlling। ये जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो जो सब्सटेंस बना रहा है या जो इसका एंड प्रोडक्ट है वो एंड प्रोडक्ट इसी कंट्रोलिंग सेंटर पर खुद भी असरअंदाज होता है। इस किस्म के मैकेनिज्म को कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पर एक सिंप्लीफाइड डायग्राम आप देख लें। मसलन ये आपका एक प्रोसेस है, उसको ये एक कंट्रोल सेंटर कंट्रोल कर रहा है और फाइनली इसका प्रोडक्ट बनता है। अगर प्रोडक्ट इस जब एज एन इनपुट वापस आकर इस प्रोसेस को क्या करें, स्लो करें, इस प्रोसेस का मकसद है ये आउटपुट देना, लेकिन ये आउटपुट अगर यहाँ पर वापस आकर इस प्रोसेस में इनपुट की शक्ल में आए और इस प्रोसेस को की रफ्तार को या बढ़ाए या घटाए, तो दोनों सूरतों में इस आउटपुट का इस प्रोसेस पर कंट्रोल है, यानी इसको रेगुलेट कर रही है। इस कंडीशन को हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। कॉमन किस्म जो लिविंग सिस्टम्स में है वो है नेगेटिव फीडबैक। क्या बोले, जो प्रोडक्ट बनेगा वो अगर इस प्रोसेस को आहिस्ता आहिस्ता स्लो करता है ताकि ये प्रोडक्ट बगैर ज़रूरत के न बने और जिसम होम्योस्टेसिस में या इक्विलिब्रियम में रहे। लेकिन कुछ यूनिक केसेस ऐसी भी है कि जहाँ पर ये एंड प्रोडक्ट जो है, इस प्रोसेस का जो प्रोडक्ट है वो जब फीडबैक करें तो इस प्रोसेस को मजीद बढ़ा सकता है। ये इक्विलिब्रियम से या होम्योस्टेसिस से बॉडी को दूर लेके जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये चीज़ें ज़रूरी होती है जिसका आगे हम एग्जाम्पल में बात करेंगे। लेकिन अगर आउटपुट जो है इस प्रोसेस को स्लो कराए दैट इज कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक, उसकी मिसालें कॉमन है। और अगर आउटपुट जो है इस प्रोसेस को मजीद स्पीड अप करे इसको कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। इसकी मिसालें लिविंग सिस्टम में काफ़ी कम है। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा? A positive feedback loop occurs in nature when the products of a reaction leads to an increase in that reaction
If we look at a system in the homeostasis, a positive feedback loop moves a system further away from the target of the equilibrium. It does this by amplifying the effects of a product or event and occurs when something needs to happen quickly. They are less common in nature. इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल इसकी क्या है? When labor begins, यानी जब बच्चे की पैदाइश का वक्त होता है, the baby's head is pushed downward. मैं इधर डायग्राम भी दिखा दूं. जब बेबी की पैदाइश का वक्त होता है, so the head of the baby pushes against the cervix. सर्विक्स या कर्विक्स जो है, ये जो यूटरस है उसका आखिरी जो माउथ या ओपनिंग है बाहर की तरफ, उसको कहते हैं. तो जब बेबी का हेड जो है इसको टच करता है, तो इस स्ट्रेच की वजह से द नर्व इंपल्सेस फ्रॉम द कर्विक्स सर्विक्स आर ट्रांसमिटेड टू ब्रेन. इस स्ट्रेच की वजह से नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है और इंपल्सेस जाते हैं टुवर्ड्स द ब्रेन. ब्रेन इसके नतीजे में उसका हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है. ब्रेन स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन उसमें पहले से मौजूद हाइपोथैलेमस टू प्रोड्यूस तो क्या होता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर रहता है, लेकिन इस स्ट्रेच के नतीजे में वो स्टिमुलेशन होती है, एंड द ऑक्सीटोसिन इज रिलीज इनटू द ब्लड. ऑक्सीटोसिन कैरिड इन द ब्लड स्ट्रीम टू द यूटरस. ये यहाँ पर आकर इस स्मूथ मसल्स को एक्टिवेट करती है और इसकी वाइब्रेंट कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है. सो द ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूट्राइन कंट्रैक्शंस एंड पुशेस बेबी टुवर्ड्स द सर्विक्स. अच्छा, ये भी याद रखिए कि ऑक्सीटोसिन के आने के नतीजे में यहाँ पर ये जो प्रेशर या स्ट्रिचिंग है मजीद बढ़ेगा, और जितना ये ज्यादा स्ट्रिच करेंगी उतनी ही ये स्टिमुलस वहां जाकर मजीद ऑक्सीटोसिन खारिज करेगी, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन खारिज होगी तो ये कंट्रैक्शन मजीद वायलेंट होते जाएंगे, हत्ता कि बच्ची की बर्थ हो जाए और बच्चा पैदा हो जाए, पार्चुरेशन हो जाए. So when labor begins, the baby's head is pushed downwards and results in increased pressure on the cervix. This stimulates receptor cells to send a chemical signal to the brain, allowing the release of oxytocin. This oxytocin diffuses to the cervix via the blood, where it stimulates further contractions. These contractions stimulate further oxytocin release until the baby is born. तो इस किस्म की ये जो है बेबी की स्टिमुलेशन की वजह से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होना, और ऑक्सीटोसिन जब थोड़ी सी मकदार में सिक्रीट हो जाए तो कंट्रैक्शन होगी, और उस कंट्रैक्शन के नतीजे में मजीद ऑक्सीटोसिन जो है उसकी प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी जब तक कि बच्ची की पार्चुरेशन ना हो, लेबर प्रोसेस में उसकी पैदाइश ना हो. तो इस किस्म के अमल में आपने देखा कि एंड प्रोडक्ट से जो कंट्रोलिंग सेंटर है जैसे हाइपोथैलेमस है मजीद एक्टिवेट होता जाता है. इसलिए ये मिसाल है किस चीज़ की? पॉजिटिव फीडबैक की. नेगेटिव फीडबैक कॉमन होते हैं, और ये क्या होते हैं? नेगेटिव फीडबैक लूप occurs in biology when the product of a reaction leads to a decrease in that reaction. In this way, a negative feedback loop brings the system closer to a target of stability or homeostasis. Negative feedback loops are responsible for the stabilization of a system and ensure the maintenance of a steady, stable state. यानी ये जिसम में डिस्टर्बेंस नहीं होने देना. एक हार्मोन है तो वो इतनी मकदार में सिक्रीट हो जितना ज़रूरत हो, ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीट ना हो. इसलिए उसकी कंसंट्रेशन जो ही बढ़ने लगेगी, it will feed back to the controlling center where its further release will be inhibited or retarded. The response of a regulating mechanism is opposite to the output of the event. जब आउटपुट बढ़ने लगे और एक्यूमुलेट होने लगे और जितना बढ़ते रहे, उसी तरह उस कंट्रोलिंग सेंटर की जो इसी चीज़ की सिंथेसिस है या इसी प्रोडक्ट की सिंथेसिस वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो और यहाँ तक कि स्टॉप भी हो. इसकी मिसाल आप देख लें, ब्लड के अंदर शुगर की कंट्रोल, ग्लूकोज की कंट्रोल. आप देख लें कि जब जिस्म के अंदर स्टिमुलस ये हो कि रेजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, फॉर एग्जांपल आफ्टर ईटिंग ए कार्बोहाइड्रेट रिच मील, तो जिस्म में अगर खून की मकदार 120 या 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड से बढ़ जाए, इसको हम इंक्रीज कहते हैं. इट स्टिमुलेट्स बीटा सेल्स ऑफ द पेंक्रियास स्टिमुलेटेड टू रिलीज इंसुलिन इनटू द ब्लड. तो क्या स्टिमुलेट होंगे? पेंक्रियास के बीटा सेल स्टिमुलेट होंगे, और इसके नतीजे में क्या बनेगा? बीटा सेल से क्या बनता है? इंसुलिन. अब इंसुलिन जो है खून के अंदर शुगर की मकदार को कम कराएगा मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स के जरिए, जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं. मसलन क्या करेंगे? ये बॉडी सेल्स टेक अप मोर ग्लूकोज. इसी तरह लीवर टेक्स अप ग्लूकोज एंड स्टोर इट एज ग्लाइकोजन. दोनों का कलेक्टिव इफेक्ट ये होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्लाइंस टू ए सेट पॉइंट.
इसका नतीजा क्या होगा? ये काम था इसका कि ये ग्लूकोज लेवल बढ़े, इंसुलिन आए और इंसुलिन शुगर की मकदार को कम करे। तो जब शुगर की मकदार कम हो गई, अब ये एक फीडबैक है टुवर्ड्स द कंट्रोलिंग सेंटर कि मजीद जो है ये इंसुलिन बनाना बंद कर दे। इसलिए ये एक एग्जांपल होगी किसकी? नेगेटिव फीडबैक की। ठीक है, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आता है कि शुगर की लेवल अगर इंसुलिन के एक्शन की वजह से एक खास हद से कम होनी शुरू हो जाए, तो दैट इज स्टिमुलस देन फॉर ग्लूकागॉन प्रोड्यूसिंग सेल, दैट इज अल्फा सेल। मसलन स्टिमुलस अगर क्या बने? रिमूवल ऑफ एक्सेस ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, फॉर एग्जांपल आफ्टर स्किपिंग अ मील, जैसे मसलन फास्टिंग में बहुत देर तक आपने खाना नहीं खाया तो ग्लूकोज लेवल एक खास हद से कम हो गई। मसलन कितने कम हो गई? लेस देन 80 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड रह गई। तो ऐसी सूरत में फिर पेंक्रियाज के कौन से सेल्स अल्फा सेल स्टिमुलेट होते हैं? अल्फा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज स्टिमुलेटेड टू रिलीज ग्लूकागॉन इनटू द ब्लड। अब ग्लूकागॉन जो है ये प्रोड्यूस होता है कंट्रोल सेंटर से, और इसका रोल क्या है? ये ग्लूकागॉन करता है, लिवर ब्रेक्स डाउन द ग्लाइकोजन एंड रिलीजेस ग्लूकोज टू द ब्लड। इसका काम है ग्लूकोज बनाना। तो ये मतलब कि कंट्रोल सेंटर हुआ, ये प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला एजेंट है, हार्मोन है। इसका काम है ग्लूकोज की मकदार को खून में बढ़ाना। खून बढ़ में ग्लूकोज की मकदार बढ़ गई, ब्लड ग्लूकोज लेवल रेजेस टू एसिड पॉइंट, स्टिमुलस फॉर ग्लूकागॉन रिलीज डिमिनिशेस। तो यहाँ पर ये अलग नेगेटिव फीडबैक है। ये मैं थोड़ा सा यही दिखा रहा हूँ, ये जो लूप है ये अलग से एक नेगेटिव फीडबैक है और ये अलग है। ठीक है ना? जब ज्यादा होती है तो इंसुलिन खारिज होगा, क्योंकि इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कम करना। ग्लूकोज कम करने का काम इसने किया, इसलिए मजीद इंसुलिन अब ये इसने अपना काम कर दिया। इसलिए ये लो कंसंट्रेशन जब फीडबैक होगा तो इंसुलिन की मजीद सिक्रीशन कम होगी या ख़त्म होगी। इसी तरह इस ग्लूकागॉन वाले में उसमें जब ग्लूकोज के लेवल एक खास हद से कम हो, ये स्टिमुलस है, स्टिमुलेशन ऑफ किस कौन से सेल के लिए? अल्फा सेल के लिए। और अल्फा सेल जब स्टिमुलेट होंगे, ये कंट्रोल सेंटर से हार्मोन खारिज होगा ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का काम है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना, और जब भी ग्लूकोज की लेवल बढ़ गई, काम हो गया, प्रोडक्ट बन गए, ये है प्रोडक्ट। तो भैया ये फीडबैक करेगा इस कंट्रोल सेंटर को ताकि मजीद ग्लूकागॉन सिक्रीट ना हो, और शुगर की लेवल जितने हद तक पहुंचनी थी वहां तक पहुंच गई, इतना ज्यादा भी ना हो कि उससे हाइपरग्लाइसीमिया हो। इसलिए यहाँ पर भी क्या कौन सा अमल हो रहा है? नेगेटिव फीडबैक। और ये नेगेटिव फीडबैक आपने देखा सेट पॉइंट की तरफ कंडीशन को लेके आती है, यानी इनका रोल है होम्योस्टैटिक, इसलिए ये बॉडी में कॉमन है। यही मैंने वहाँ पर HPA एक्सिस में थायरॉक्सिन हार्मोन के यानी एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन या कार्टिसोल के हवाले से भी बात की थी। यही मैकेनिज्म आपकी थायरॉक्सिन के हवाले से होता है कि थायरॉक्सिन की मकदार अगर खून में बढ़ेगी तो जो हाइपोथैलेमस से उसको रिलीज करने वाला फैक्टर वो भी कम फिर सिक्रीट होना शुरू होगा। TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कम सिक्रीट होगा। मतलब ये सिर्फ एक टिपिकल एग्जांपल है जो आपकी बुक में है, इसलिए मैंने इसको फोकस किया। बाकी हर जगह हार्मोन के पाथवे में आपको मिलेगा नेगेटिव फीडबैक कि जब जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो अपना काम कर दिखाए तो वो जो काम हो जाता है वो फीडबैक होकर एंडोक्राइन ग्लैंड को फिर इनहिबिट करती है ताकि अपना सिक्रीशन मजीद रोक ले, क्योंकि आगे इतनी बॉडी को ज़रूरत नहीं है। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक एज वेल एज टू द